Hello dear students, welcome back. So today we are going to continue with the same chapter of class 7 history, tracing changes through 1,000 years. As we already discussed so many topics including introductory part of this chapter with you. Now we will proceed further with the new topic named as new social and political groups. Okay, in this topic we will discuss about that how new social and political groups are created and how they affect in that time period. At a different moment in the time period, new technologies made their appearances like the Persian wheel in irrigation, spinning wheel in weaving, and firearms in combat. There are so many foods and beverages also, like potatoes, corn, chilies, tea, and coffees. There are so many innovation which affect, you can say, life of the common people. ओके और ये जो लाइफ है, ये जो इफेक्ट है, दीज इफेक्ट्स आर नॉट नेगेटिव इफेक्ट्स because generally we thought that effects are only negatives. No, if innovation is there na, then it always come up with the positive feedback and positive effects. Like if we are having a Persian wheel in the irrigation, help us in the irrigation process, which increase the production of our crops. So if the production will increase, then automatically our income will increase. So like this, all these periods of economic, political and social and cultural changes. Economic, as we discussed, that if income will increase, then it comes under economic changes. Political means so many groups are formed and created at that time by different rulers and by different kings. Social means changes related to the society are come under social changes and cultural changes. So if the point is not clear to you, then let me explain you in detail. First changes is economic. Economic is related to the money. Okay, when it is related to money, it comes under economic changes. After that we are having political changes. Political means related to the political boundaries, related to the kings and their kingdoms. Next, social means related to the society. All the changes which are related to the society are come under social changes. Next we are having cultural changes, means when we come up with new rituals and new things, and the things which we have to follow related to our religion, related to basically to the festival, all comes under cultural changes. Changes doesn't mean only negative changes. Changes can be positive, changes can be negative. But when it's come to the point of the innovation, then changes are always come up with the positive effects only. Okay, so like this, there are so many changes in that particular time period which is of a great mobility. Okay, this was also a period of great mobility. Mobility means anything which is not stable. Mobility, when we you can move from one place to the another place. Okay, as we discussed that discovery of wheel provide mobility to the general public, that they can move from one place to the another place in the search of opportunity. If there is a lack of opportunity at one place, so they can move from to the another place also. Okay, and this increase their wealth and the possibility of people to crave a fortune. Okay, if you are not having job at a one place, so what you will do, you will move to the another place, and at the place where you are easily getting job. So that job will provide you wealth, that job will provide you the development. Okay, so that was the period of great mobility. अब आप बात आ जाती है सोशल ग्रुप्स की. उस टाइम पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप था वो था राजपूत, एंड अ नेम डराइव फ्रॉम राजपुत्रा. ठीक है, द सन ऑफ अ रूलर. एक रूलर थे, उनके सन का ही वो नाम था. 8 से 14 सेंचुरी. कहाँ से? 8 सेंचुरी टू टिल 14 सेंचुरी जो हमारी थी, दैट वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर हु क्लेम क्षत्रियास. क्षत्रियास मीन्स, क्षत्रियास यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं, अ टर्म इंक्लूड्स, वेट, यस, a term
इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर, मीन्स वो सिर्फ रूलर नहीं थे, उसमें सोल्जर्स भी होते थे, उसमें कमांडर्स भी होते थे, आर्मी में भी वो अपना सर्व करते थे, जो भी उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। एंड ऑल दीज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सर्व इट विद द ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, ठीक है, वर द क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट टू द राजपूत। उनके अंदर कोई भी ये मतलब पार्शियलिटी वाली फीलिंग नहीं होती थी कि वो तो रूलर हैं, हमें सोल्जर बना दिया या फिर उन्हें कमांडर की पोस्ट के लिए सजेस्ट कर दिया। नो, दे ऑल वर फीलिंग इक्वल फीलिंग्स, बट दे फील दैट वी आर पार्ट ऑफ राजपूत फैमिली और वी आर अ पार्ट ऑफ राजपूत रूलर्स, ठीक है, जिनका अपने आप में बहुत बड़ा यू कैन से एक स्टेटस होता था उस टाइम पे। उसके अलावा बहुत सारे अलग पीपल्स थे, जैसे मराठा हैं, सिख हैं, जाट्स हैं, अहोम्स हैं, क्षत्रियाज हैं। दे ऑल्सो यूज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। जितना इम्पोर्टेंस राजपूत्स का था इन एवरी फील्ड, इतना ही इम्पॉर्टेंट वो भी चाहते थे और उनका भी हुआ था। ऐसा नहीं था कि उनका कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं थी, उनकी भी इम्पॉर्टेंस होती थी। Although this period was a great gradually clearing of forest and extension of agriculture. When you are clearing forest for the extension of the agriculture, then the change faster and more competitive in some areas than in others. अगर आपके पास एक पर्टिकुलर लैंड है और आप उसको ही कल्टीवेट कर रहे हो टाइम टू टाइम, उसके कंपैरिजन में अगर आपके पास कोई दूसरी लैंड है और उसके आसपास जो फॉरेस्ट है आपने उसको भी क्लियर करके अपना जो एग्रीकल्चर एरिया है उसको क्या किया है, एक्सटेंड कर लिया है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर चेंजेस होंगे वो ज़्यादा फास्ट होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से लोगों का जो हैबिटेट है उसमें भी चेंज हुआ है। दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। इफ़ यू आर हैविंग अ बिग लैंड टू बी कल्टिवेटेड, सो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि पूरी की पूरी लैंड आप ही कल्टिवेट करोगे। फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड यू नीड सम लेबर्स, और लेबर्स वहाँ पे कौन होगी, द वन हु डोंट हैव एनी लैंड टू कल्टिवेट, ठीक है। तो जो लैंडलेस लेबर्स हो गए वो वहाँ पे आके एज अ लेबर का काम करते थे, और वहाँ पे जिनका वो खुद का यू कैन से लैंड होती थी वो वहाँ पे फिर रूलर्स बन जाते थे, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे जो अदर सोशल ग्रुप्स हैं दे स्टार्टेड डेवलपिंग, और वहीं पे से आपका एक पॉइंट आया था माइग्रेशन का, ठीक है। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन होता है व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ठीक है। और जो पीपल्स होते हैं यू कॉल देम माइग्रेट, okay, migrate from one place to the another place in the search of job, in the search of food and for things, okay। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा जातीज़ का। जातीज़ फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर फैमिली। जो डिफरेंट डिफरेंट जातीज़ होती है वो उनके खुद के वो रूलर्स होते हैं, खुद के उनके रूल्स होते हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को खुद से ही वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर। उस पूरी जाति में जो भी सबसे बड़ा होता है वो वहाँ पे क्या होता है, जाति की वो पंचायत होती है, और वही सारे के सारे क्या करते हैं, रूल रेगुलेशन को फॉर्मुलेट करता है, और बाकी विलेजर्स को भी क्या करता है, उनको भी डिस्क्राइब करता है दैट व्हाट रूल्स एंड रेगुलेशन दे नीड टू बी followed. Okay, several villages were governed by the chieftains. Together they were only one small unit of a state. It's not that कि अगर small rulers हैं तो वो पूरे complete village पे या किसी भी एक state पे रूल करते थे, वो अपना छोटा सा ग्रुप बना लेते थे और उस ग्रुप का एक अपना लीडर वो क्या करते थे, चूज़ कर लेते थे। बट जो जातीज़ होती थी उनका उस पर्टिकुलर जाति से जितने भी लोग रिलेट करते थे, जो हेड होता था उनको जातीय पंचायत की जो पोस्ट होती है उससे अपॉइंट किया जाता था, और वो ही सारे रूल रेगुलेशन क्या करते थे, बनाते थे और दूसरों को डिस्क्राइब भी करते थे। ओके, नाउ इट्स कम टू द रीजन एंड एम्पायर। ओके, तो देखिए जो चैप्टर 2 होगा उसमें आप पढ़ोगे तुगलक्स के बारे में, ठीक है। सॉरी, चैप्टर 2 में आप चोलास के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में आप तुगलक्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो चैप्टर 4 होगा उसमें आप मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका चैप्टर होगा उसमें आप डिटेल स्टडी कर पाओगे रिलेटेड टू द रीजन एंड एम्पायर्स का, ठीक है। एक संस्कृत प्रशास्त्री होता है, ठीक है। प्रशास्त्री मीन कॉमन लैंग्वेज के लिए आप उसको बोलते हो। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान्स गियासुद्दीन बलबन, उसको क्या किया गया, प्रेज किया गया।
explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and includes South India. अब देखिए, let me explain you with the help of this map. We are having this map. Okay, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है. He was the ruler of vast empire stretched from Bengal. Here we are having Bengal at this place. ठीक है, बंगाल से देखिए ईस्ट, बंगाल से हमारा आया, बंगाल हमारा ईस्ट से आया, here. Okay, and then अफगानिस्तान इन द वेस्ट, यहाँ से कहाँ पे पहुँच गए, अफगानिस्तान इन द वेस्ट, इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया. साउथ इंडिया कहाँ पे, दिस इज द पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया. सो दिस वॉज द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन. ठीक है, इट इज़ अ वास्ट एम्पायर टू बी कंट्रोल ना. यस, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन जैसे आपका आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ओके, वो सब उसकी आर्मी में होते थे. सो लाइक दिस बलबन हैड अ ग्रेट रीजन टू कंट्रोल. ओके, and at the same time they try to understand why ruler kept claiming to have control over different part of the subcontinent because they want to expand their region. लोगों को ये चीज़ समझ आती थी कि जो एम्पायर है, जो भी रूलर है, वो इतना ज़्यादा कंट्रोल क्यों करते थे किसी भी टेरिटरी पे, किसी भी सब कॉन्टिनेंट पे, बिकॉज दे वांट टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी. ओके, एंड लाइक दिस देयर वाज कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स. वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते थे. कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि जो एक रूलर है, जो कॉम्पिटिटर है उसके, वो क्या चाहते थे, वो भी जो सेम टेरिटरी है उसको कंट्रोल करना चाहते थे. एंड इफ़ दे वांट टू कंट्रोल ओवर दैट पर्टिकुलर टेरिटरी और कॉन्टिनेंट, देन दे नीड टू डिफीट अ एग्जिस्टिंग रूलर. और अगर वो एग्जिस्टिंग रूलर को डिफीट कर पाते थे तभी वो वहाँ पे क्या करते थे, अपना जो किंगडम है वो इस्टेब्लिश कर पाते थे. ओके, अब उसके बाद देखिए, नॉट ऑल दिस एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल. ऐसा नहीं है कि जिसने भी किसी दूसरे किंगडम पे रूल किया वो सब सक्सेसफुल ही हुए थे. अगर सामने वाला जो किंग है, अगर वो ज़्यादा पावरफुल है तो वो क्या करते थे, वो उनको ही डिफीट कर देते थे. ठीक है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूलर ऑफ द खिलजी एंड मुगल डायनेसिटी. अब देखिए, जो मुगल डायनेसिटी का है इसके बारे में बताया गया. व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी. मुगल्स जो है वो 18th सेंचुरी के बाद डिक्लाइन होने लग गए थे, क्योंकि जो औरंगज़ेब था, दैट वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर. ठीक है, 1707 में उनकी डेथ हो गई थी. यू विल स्टडी ऑल अबाउट दिस इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8. ठीक है, वो अभी आपका नहीं आएगा. उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, दिस वॉज अपरेंट इन द एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्ट्रिक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन इन द रिक्लेम ऑफ गवर्नेंस. उसके बाद जब मुगल्स आपके डिक्लाइन होते हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है. जब ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो मुगल्स हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं एंड नाउ दे आर नॉट दैट मच पावरफुल, तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से वहाँ पे उनके ऊपर अपना सारा का सारा कंट्रोल इस्टेब्लिश किया. ठीक है, उसके बाद देखिए आता है आपका न्यू एंड ओल्ड रिलीजन्स. बहुत सारे रिलीजन यहाँ पे ऐड ऑन हुए थे. पहले के टाइम पे तो बहुत कॉमन यहाँ पे जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल कम्युनिटीज़ होती थी. ठीक है, उसके बाद आइडिया ऑफ भक्ति आया. आइडिया ऑफ भक्ति में 7th में आगे आप पढ़ोगे. ठीक है, कुरान के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई है. जो मुस्लिम है, वो मुस्लिम्स की जो होली बुक है वो कुरान होती थी आपकी. ठीक है, और वो जो गॉड है, गॉड को वो क्या बोलते थे, अल्लाह बोलते थे. ठीक है, उसके बाद इस्लाम आ जाते हैं. ठीक है, इस्लाम में उनकी खुद की टर्मिनोलॉजी होती है. एंड लाइक दिस यू आर हैविंग सो मैनी अदर रिलीजन्स ऑल्सो. Last topic which we are having is thinking about time and historical periods. So historians do not see time just as a passing of hour.
ठीक है, उनके लिए वो पासिंग ऑफ आर नहीं है। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे चेंजेस होते हैं उन्हें, तो जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्हें तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ स्टडी मिल ही जाती है। ठीक है, द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड सम somewhat easier by the divide the past into large सेगमेंट्स, वो पूरे सेगमेंट को, लार्ज पीरियड को क्या करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। वहाँ से उन्हें जो भी आपकी यू कैन से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको वो फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और आपके लिए फिर वो एक न्यू बुक लेके आ जाते हैं। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर was the only important historical changes, and that there were no other significant developments in the economy, society and cultural. As I already discussed with you कि जो मुगल्स थे उनका जो डिक्लाइन हुआ था टाइम, उस डिक्लाइन होने के बाद वहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए थे। ठीक है, उसके बाद जो इंडिया है, पार्टीशन के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, दैट इज़ हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में उन्होंने क्या किया है, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने डिवाइड कर दिया है इंडियन हिस्ट्री को। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है, आप टाइम्स होते हैं हिस्टोरियंस के पास, तो किसी भी चीज़ को सर्च आउट करने के लिए फर्दर वो क्या कर देंगे, मॉडर्निटी ले आएंगे, वो मॉडर्न पीरियड। जैसे जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है उसमें आपको बताया था एंशियंट टाइम है, मॉडर्न टाइम है, मिडीवल टाइम है, तो इस तरीके से भी हिस्टोरियंस ने क्या किया है, हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बट उनका क्या है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया है। तो सबके क्या है, जितना जो भी हिस्टोरियंस हैं उनका अलग अलग व्यू पॉइंट्स है टू डिवाइड द हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ओके, बट द मेन थिंग इज दैट व्हाट दे नीड टू एक्सप्लेन, वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इफ़ दे वांट टू एक्सप्लेन the time period or the problems, then they need to divide that into ancient, medieval and modern. If some Britisher will you can say calculate the time and will study about the things or the events which occurred in history, so he divided into Hindu, Muslim and British. Okay, so like this all these changes, wherever you can read and look at the world around you to see else has changed or remained the same. कोई भी चीज़ है उस पर आप पता लगा सकते हो कि आज के टाइम पे अगर ये चीज़ ऐसी है तो पहले के टाइम पे ये चीज़ कैसी होगी। सो इस तरीके से आप खुद उस चीज़ को जज कर सकते हो, और जो चेंज है वो अपने आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। Okay, so this was all about this chapter. So from my side, your chapter is over. If you are having any doubt and any queries, so you can come up with your query in the comment box. Thank you so much.